Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari, Radhe. Radha Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari, Radhe. Jaya Gauranita, 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 Jai Gauranita, 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 Gauranita. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jai Gaurari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaurari Bol. जो मिष्पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री गोपाद महाराज की जय। जो मिष्पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री गोपाद महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। वृंदावन मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण। The lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. I bow down to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by words of emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. He opens my darkened eyes and fills my heart with the transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him, ecstatic prema emanates. By him, ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. For our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of poor and Lord and master of the devotees. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of most fallen. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Gurudev. इतना ही है क्या?
Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya Jaya Yashodanandana Jaya Yajanarandana Jaya Yashoda Jaya Yashodanandana Jaya Yajanarandana Jaya Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Radha Kund Bihari, Radha Kund Bihari, Radha Kund Bihari, Radhe Radhe. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Hey, Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस परिवार अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 62। पीछे दोहराइए। चकर्त सप्तधा गर्भम वज्रेण कनक प्रभवम रुदन्तं सप्ताधिकैकम् मारोदीरिति तान् पुनः चकर्त सप्तधा गर्भं वज्रेण कनकप्रभं रुदन्तं सप्तधैकं मां रुदीर इति तान् पुनः चकर्त सप्तधा गर्भं वज्रेण कनकप्रभं रुद्धं तं सप्तधैकैकं मारुदीर इति तान् पुनः चकर्त सप्तधा गर्भं चकर्त सप्तधा गर्भं वज्रेण कनकप्रभं रुदन्तं सप्तधैकैकं माताएं। चकर्त सप्तधा गर्भं वज्रेण कनकप्रभं रुदन्तं सप्तधैकं मां रुदीरितः न पुनः चकर्त सप्तधा गर्भं शब्दार्थ। चकर्त काट दिया, सप्तधा 7 खंडों में, गर्भम गर्भ को, वज्रेण अपने वज्र से, कनक स्वर्ण की, प्रभम ज्योति वाले, रुदंतम रोते हुए, सप्तधा 7 खंडों में, एक एकम प्रत्येक को, मारोदी मत रो, इति इस प्रकार, तान उनको, पुनः फिर। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अवचरणार्विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर इंद्र ने अपने वज्र से चमकते हुए सोने की समान गर्भ भ्रूण को 7 खंडों में काट डाला।
7 स्थानों में 7 विभिन्न जीव रोने लगे। इंद्र ने मत रो ऐसा कहकर प्रत्येक को पुनः 7 खंडों में काट डाला। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इंद्र ने अपनी योग शक्ति से पहले एक मरुत के शरीर को 7 भागों में बढ़ा दिया और फिर मूल शरीर के 7 भागों में से प्रत्येक को काट कर कुल 49 भाग कर दिए। जब प्रत्येक शरीर के 7 खंड किए गए तो अन्य जीवात्माओं इन शरीर में प्रविष्ट कर गए। इस प्रकार वे उन वृक्षों के तुल्य बन गए जिन्हें विभिन्न हिस्सा में काट कर पर्वत के ऊपर लगा दिया जाता है और वे पृथक सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। पहला शरीर एक ही था और जब उसे कई खंडों में काटा गया तो अन्य जीवात्माएं इन नवीन शरीर में प्रवेश कर गए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति तापदान्ति तं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं जनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखांशुनं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले ते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्यवीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप समझ क्या श्री राधा कुंज बिहारी श्री निताई गौर सुंदर श्रील प्रभुपाद और सारे वैष्णव के चरण से कृपा की भिक्षा करते हुए और इस जो विषय श्रीमद् भागवतम का कि राजा इंद्र की वध करने के राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। यहाँ बहुत ही रोमांचक है किस प्रकार से एक जो और तीसरा स्कंद पे हम देखते हैं पढ़ते हैं किस प्रकार से यही
दीति अपने पति कश्यप को प्रार्थना कर रही कि मुझे क्या चाहिए, पुत्र चाहिए। और जबकि कश्यप मुनि एक महान ऋषि होने के कारण उन्हें दीति का जो प्रार्थना था अपने पत्नी का जो इच्छा को, वो इच्छा अच्छा नहीं होते हुए कश्यप ऋषि को इस इच्छा को पूरा किए, और जिसके कारण जो है माता दीति को 2 पुत्र मिले, हिरण्यकशिपु और हिरण्यक। और जिस समय उनका जन्म हुआ उसी समय पूरे संसार में ऐसे अलग अलग अशुभ घटना भी, जिसके कारण माता दीति भी डर गई, क्योंकि पहले कश्यप ने बताए थे कि ये जो समय सही नहीं है। और फिर वहां पे जो है कश्यप मुनि फिर उनको बताया कि ये जो 2 पुत्र हुए ये क्या होंगे, बड़े असुरी प्रभाव के होंगे, और फिर उनको उद्धार करने के लिए कौन आएंगे, भगवान स्वयं आएंगे। 2 अलग अलग रूप के, एक बराह अवतार आएंगे, वो जो है हिरण्यक को वध करेंगे पहले, और इसके बाद फिर भगवान नरसिंह देव प्रकट होंगे और हिरण्यकशिपु को। तो ये सुन के जो है दीति के मन में थोड़ा सा सांत्वना हुई कि ठीक, चलो किसी न किसी कारण से भगवान के द्वारा उनका उद्धार होगा। और फिर वो प्रसंग आया 7वां स्कंद में हुआ। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो है हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार से वही माता दीति फिर से अपने पति को प्रार्थना कर रही है, उनको प्रसन्न भी कर रही है किसी प्रकार से कि मुझे भी एक पुत्र चाहिए, लेकिन वो पुत्र कैसा होना चाहिए, जो है इंद्र को वध करने के लिए। ऐसे तो देखा जाए तो दोनों भाई है, इंद्र और हिरण्यकशिपु, और पिता एक है लेकिन माता अलग अलग है। माता आदित्य के जो पुत्र होते हैं उनको आदित्य देवता कहा गया, और दीति के जो पुत्र होंगे उनको कहा गया दैत्य या असुर। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उनके पिताजी एक है लेकिन माता अलग अलग है, और दोनों में अंतर क्या है कि जो भगवान के नियम को पालन करते हैं उनको देवता कहा गया, जो भगवान के नियम को पालन नहीं करते उनको दैत्य कहा गया, असुर कहा गया। वो चाहे किसी का भी पुत्र हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इस जो है दैत्य के परिवार में श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री निताय गौर सुंदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। उससे पहले हम देखते हैं कि जो है हिरण्यकशिपु के पुत्र कौन हुए, भक्त प्रहलाद, जो महाभागवत हुए। तो ये जरूर नहीं है कि केवल एक असुर के परिवार में केवल असुर का जन्म होता है। जैसे कहा जाता है कि जन्मदा जायते शूद्र संस्कारत भवे द्विजा। तो कोई भगवान के भक्त के संग में या भक्ति के माध्यम से वो भक्त बन सकता है। तो ये प्रहलाद महाराज के बिल्कुल उदाहरण भी है। लेकिन यहाँ पे दीति के मन में फिर से वही ये हुआ कि मेरे 2 पुत्र को कौन मार दिया, मारे तो भगवान विष्णु, लेकिन उसका कारण कौन बने, इंद्र बने। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि देवता और असुर के बीच में संग्राम, लड़ाई हमेशा होती कि कौन इंद्र का पद, स्वर्ग का राजा कौन बनेगा। तो कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि देवता लोग जीत जाते हैं, और कभी कभी दिखाई पड़ता है कि असुर लोग भी जीत जाते हैं। तो यहां पे अभी दीति के मन में फिर से वही हुआ कि मेरे 2 पुत्र को मार दिए। और विशेष करके हम देखते हैं कि इंद्र जो है बड़ा जैसे हम भौतिक भाषा में कहते हैं कि बड़े इंद्रिय तृप्ति मत है। तो ये दीति को सहन नहीं हुआ कि
अभी इंद्र को क्या करना चाहिए, मैं उसको सबक सिखाना चाहती हूँ। और इस कारण से दीति क्या कर रही है कि फिर से कश्यप मुनि को प्रार्थना कर रही है, जो हमने पहले सुना किस प्रकार से। और विशेष करके महाराज परीक्षित के मन में फिर से वही प्रश्न हुआ कि कैसे क्या जो है, क्योंकि ये प्रसंग पहले बता चुके हैं, सुखदेव गोस्वामी पहले बता चुके हैं इस अध्याय में, इस श्लोक पहले, कि माता दीति के गर्भ से कौन जन्म लेंगे, मरुता, जो 49 मरुता वो जन्म लेंगे। और जबकि वो दीति के गर्भ से जन्म लेंगे, लेकिन क्या बनेंगे, वो देवता बनेंगे। तो ये महाराज परीक्षित के मन में ये प्रश्न हुआ कि ये कैसे हुआ। और द्वितीय भी क्या चाह रही है कि मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र संतान होना चाहिए जो क्या होगा, वो इंद्र से भी, तभी तो इंद्र को मारेगा ना, तभी इंद्र को हत्या करनी होती है। तो इसका प्रभुपाद लिखते हैं कि वहां पे कि इंद्र जैसे या इंद्र से बनते, मतलब देवता ही होना चाहिए। जैसे हम ध्रुव महाराज का प्रसंग में सुनते हैं कि ध्रुव महाराज का मन में भी यही विचार आया कि मुझे माता सौतेली माता, जो सुरुचि के माता का द्वारा बहुत ही क्या हो गया, कटु शब्द बताया गया, और पिताजी का द्वारा क्या क्या अवहेलना किया, जिसके कारण ध्रुव महाराज के अंदर क्या हुआ, बहुत ईर्ष्या हुआ, पिताजी के प्रति क्रोध हुआ। और फिर वो आए अपने माता के पास, सुनीति के पास आए, और माता सुनीति ने उनको क्या किया, अपने गोद में लिए। पिता का दुख हो तो उनको पहले पुत्र का दुख, और माता सुनीति ने उनको बताया कि मुझे पता है किस प्रकार से आपको जो दुख है, लेकिन मैं भी क्या हूं कि अभागी हूं, और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं जितना प्रेम आपको दे सकती हूं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि माता और पुत्र का जो प्रेम है, लेकिन आप अगर भगवान के शरण जाएंगे तो आपको लाखों करोड़ माता का प्रेम मिलेगा। तो ये भक्ति का प्रवाह है। तो सुनीति, माता सुनीति उनको जो ये आदेश दी, तो ध्रुव महाराज ने, और इससे पहले आदेश देने से पहले माता सुनीति उनको ये भी बताया कि आपके मन में जो क्रोध है माता सुरुचि के प्रति या उत्तम के प्रति या पिताजी के प्रति, इसको पहले आप हटा दो। मतलब कितनी बड़ी ये है, क्योंकि वो सुरुचि है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के भक्त है, इसलिए इस प्रकार से जो है क्या बोलते हैं उसको, सलाह, इस प्रकार से वो सलाह सुनती है। और ध्रुव के मन में ये विचार था कि मुझे जो अपने पिताजी से बढ़कर मुझे साम्राज्य चाहिए। तो एक तरफ से देखा जाए कि मतलब ब्रह्मा जी से भी बड़ा, तो इस संसार में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है, जो ब्रह्मा जी को प्राप्त है सत्यलोक में, ब्रह्मलोक। तो उससे बढ़कर मतलब क्या है, वो है भगवान का धाम हो सकता है, उससे बढ़ के नहीं है। भौतिक जगत से परे मतलब क्या हो सकता है ना? तो एक दृष्टि से देखा जाए कि ध्रुव महाराज का जो इच्छा था वो भौतिक इच्छा नहीं था, वो क्या था, आध्यात्मिक इच्छा था। और इस आध्यात्मिक इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने फिर माता के आदेश से वो चले गए, घर छोड़ के वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय होके जंगल की तरफ प्रस्थान किए। और रास्ता में उनको कौन मिले, देवर्षि नारद मिले, महाभागवती है। और फिर नारद मुनि उनको फिर वही सलाह देते हैं कि ये तो स्वाभाविक है, ये घर घर का कहानी है, ये होता रहता है, और आप इतने बच्चे हैं तो ये अब समय नहीं है, बदला लेने का समय अभी ये नहीं है। तो आप जब बड़े हो जाएंगे तो फिर ये है, तो आप अभी वापस जाइए घर में, कीमती है। लेकिन ध्रुव ने प्रामाणिकता से अपने जो होने वाले मतलब देवर्षि नारद को उन्होंने बताया कि मुझे पता है आप जिस प्रकार से मुझे जो सलाह दे रहे हैं बहुत ही उचित है, बहुत ही उत्तम है, लेकिन मैं इस समय इसको धारण नहीं कर सकता हूं। तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या मार्ग, अगर आपको कोई रास्ता पता है तो मुझे कृपा करके बताइए, मैं इसको तैयार हूं। तो नारद मुनि पहले ध्रुव महाराज को परीक्षा किए,
और फिर उनको रास्ता बताया कि कैसे भगवान को प्राप्त करना। और उन्होंने 6 महीना के 5 महीना के अंत में ही उनको भगवान को प्राप्त किए, साक्षात दर्शन किए। और फिर दर्शन करने के बाद फिर जब भगवान को सुंदर प्रार्थना अर्पण किए, फिर जब वापस आ रहे थे, इतने में नारद मुनि आके क्या पे यहाँ पे महल में पहुंचे। और तभी उत्तनपाद एक्चुअली बड़े मायूस हो गए थे, बड़े दुखी हो गए थे, क्योंकि वो बिल्कुल लाचार थे, कुछ कर नहीं थे। और जब उनको पता चला कि ध्रुव घर छोड़ के गया है, तो ये सोच लिए कि अभी ध्रुव जो है वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि जंगल में अगर जाएगा तो वापस थोड़ी जाएगा, तो बालक है, किसी ना किसी जानवर के द्वारा एक्चुअली वो भोजन होती है। लेकिन वहां पे नारद मुनि आके बता रहे हैं कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि वो नारद मुनि कौन है, दूरदर्शी, वो उनको पता है एक्चुअली क्या होने वाला है। तो नारद मुनि अपने पिताजी को बोल रहे कि आप चिंता मत कीजिए, ध्रुव जो है कुछ समय के बाद ही वापस आएगा और भगवान के महान भक्त बन के आएगा। और वहां पे उत्तनापद इंतजार कर रहे हैं। और जब ध्रुव वापस फिर से पुनः आए, तो ध्रुव के मन में आपने माता सुरुचि के प्रति मतलब थोड़े मात्रा में, रंच मात्रा में क्या है, द्वेष भाव नहीं था। तो ध्रुव तो भगवान का भक्ति किए, उनके मन से द्वेष पूरी तरह से निकल गया, है ना। लेकिन सुरुचि, माता सुरुचि तरह किसी भी प्रकार का भक्ति नहीं की। लेकिन माता सुरुचि में और वर्णन आता है कि किस प्रकार से ध्रुव को स्वागत करने के लिए दोनों माता आ रही है, माता सुनीति और साथ में सुरुचि भी आ रही है। और सुरुचि भी उनको आलिंगन कर रही है, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे ध्रुव ने भक्ति की है नारद मुनि के निर्देशन में, और ये दोनों के हृदय क्या हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, द्वेष से क्या हो गया, रहित हो गया। और यहाँ पे परीक्षित महाराज का मन में भी प्रश्न आ रहा है कि कैसे जो है ये दीति के गर्भ से ये जो मरुत मतलब देवता लोग कैसे वो जन्म होंगे। और फिर जो है और विशेष करके हम देखते हैं कि जो वर्णन आ रहा है इससे पहले कि दीति ने क्या क्या अपने पति को प्रसन्न किए, और प्रसन्न करने के बाद पति ने उनको क्या दिए, वचन दे दिए कि मैं आपका जो आप इच्छा करेंगे मैं पूरा करूंगा। तो प्रभुपाद जी बड़े कड़ी शब्द पे लिखते हैं कि कैसे, है ना, पत्नी का इच्छा पूरा करना मतलब बहुत ही एक तो कठिन है, और कब क्या मांग लेंगे नहीं। और अभी रामायण से चर्चा हो रहा है कि, है ना, अभी भगवान रामलला का जन्म उत्सव आ रहा है, तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान राम को भी कितना बड़ा विपत्ति आया है कि वो 14 साल के लिए वनवास चले गए, केवल जो है महाराज दशरथ के जो आसक्ति था किसके प्रति, माता कैकेयी के प्रति, एक्चुअली अपने पुत्र को भी वो त्याग कर लिए माता की प्रति है, तो ये आसक्ति का कारण है। और यहाँ पे जो है कश्यप ऋषि जो है, जब दीति ने प्रार्थना की कि मुझे पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारने लिए, और फिर जो है वो भी बड़े दुखी हो गए कि ऐसा कैसा कर सकता हूं मैं। और फिर उन्होंने उनको जो विशेष करके ये व्रत जो आगे वर्णन आ रहा है, ये जो है पुंसवाहन व्रत, ये व्रत करने के लिए दिए कि भगवान को प्रसन्न के लिए। तो वैष्णव व्रत है। मुझे कई सारे माता जो मिले तो उन्होंने बताया कि हमने भी अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से जो है 1 साल तक हमने ये व्रत रखा था, जिसके कारण एक्चुअली उनको भक्त जैसे महान पुत्र उनके घर में ये है। और फिर जो है कश्यप मुनि उनको कई प्रकार का जो है उपदेश देते हैं कि ये व्रत को बड़े सावधानी से आपको पालन करना होगा, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो, बड़े ध्यान से पालन करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो फिर आपको ऐसे पुत्र जो है प्राप्त होगा। और माता दीति ने भी क्या किया कि तैयार हो गए कि दृढ़ निश्चय, क्योंकि इनका इच्छा था कि मुझे अपने इच्छा को पूरा करना है।
इंद्र को वध करना है, इंद्र को हत्या करना है। तो उनने बड़ी सावधानी से इनकी इस व्रत को पालन की। और फिर इतने में जब इंद्र को पता चला कि मुझे वध करने के लिए, मौसी होंगे ना, अपने माता का बहन है ना, और ये इतना बड़ा व्रत कर रही है मुझे वध करने के लिए। क्योंकि महाराज परीक्षित के हमने भी प्रश्न हुआ कि इंद्र कैसे, अगर कोई पता है कि एक्चुअली ये मेरा शत्रु है, मुझे मारने वाला है, तो मैं तो अलग अलग योजना बनाऊंगा किस प्रकार से उसका हत्या करने के लिए। हालांकि इंद्र आए किसी ना किसी प्रकार से, वो इंतजार कर रहे थे कि दीति क्या करेगी, गलती ढूंढ रहे थे कि गलती करेगी। जब वो गलती करेगी तो मैं क्या करूंगा, उस गलती का फायदा उठा के इस गर्भ में प्रवेश करके मैं इस जो संतान है उसको मैं मार दूंगा। ये उद्देश्य जो है इंद्र है। और यहां माता दीति को भी पता है कि मैं ये व्रत रख रही है किसके लिए, इंद्र को हत्या करने के लिए। लेकिन इंद्र जो है ऐसे, माता दीति भी क्या करी कि इंद्र को मतलब स्वागत किए कि आप सेवा कर सकते हैं, जो कि उनको पता है कि एक्चुअली उसके मन में क्या है, अभी भी द्वेष है कि किसी ना किसी प्रकार से सुनती है। वो भी मना नहीं कर पाए कि नहीं सुनती है ना। तो ये बहुत बड़ा ये है कि किस प्रकार से जो हम भगवान का भक्ति करते हैं। और यहां हम देखते हैं कि इंद्र ने पैर की सुजोग ढूंढ रहे। तो एक समय था, और भी वहां पे वर्णन आता है कि जो संध्या के समय था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग संध्या के समय हमको बड़ी सावधानी से एक्चुअली क्या करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए क्योंकि उसी समय क्या है, जो अलग अलग भूत है, प्रेत है, इनका प्रभाव बड़े जोरदार रहता है ना। उसी समय जो है उनको सावधानी रहना चाहिए। और फिर वर्णन आता है कि दीति ने इतनी बड़ी सावधानी से तपस्या कर रही थी, नियम को पालन कर रही थी, और लेकिन साथ साथ एक्चुअली क्या करी कि उसका शरीर बड़ी दुर्बल हो गई, पतली हो गई। क्योंकि तपस्या मतलब क्या, कम खाना कम सोना है ना। जब नहीं सोना चाहिए उसी समय, लेकिन उस समय एक तो भूल गलती उसने की कि मुंह नहीं धोई, और दूसरा गलती उसने क्या की कि फिर वो नींद नहीं है। और इस मौका से इंद्र ने क्या की कि दीति के घर में प्रवेश करती है। जैसे हम भागवत में प्रथम स्कंद में सुनते हैं कि जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, उस समय भी भगवान ने क्या किए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। लेकिन आजकल आधुनिक जो वैज्ञानिक है और जो साधारण व्यक्ति उसको विश्वास नहीं करेगा कि कैसे के भगवान के कैसे कोई व्यक्ति के अपने दूसरे के घर में कैसे प्रवेश करेगा बिना ऑपरेशन से। हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक साधारण जो इंद्र है, हालांकि वो देवता का स्वर्ग का राजा है, लेकिन उनके पास इतना शक्ति था कि वो दीति के गर्भ में प्रवेश करती है। और केवल प्रवेश नहीं की, दीति के गर्भ में प्रविष्ट होकर इंद्र ने अपने वज्र से चमकते हुए सोने की समान गर्भ भ्रूण को 7 खंड में काट डाला। तो पहले उन्होंने क्या किया, 7 खंड में उसको काटे। उसके बाद फिर क्या किए, 7 स्थानों में 7 विभिन्न जीव रोने लगे। तो इसका मतलब जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल जो डॉक्टर कहते हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहते हैं कि हम भ्रूण को हत्या कर सकते हैं, कि इनका कोई जीवन नहीं है, लेकिन रोने लगे वो। और इंद्र ने मत रो ऐसा कहकर प्रत्येक को पुनः 7 खंड से काट डाला। फिर से उन्होंने क्या किया, और तो इंद्र को लगा कि एक्चुअली क्या किया, मैं उसको टुकड़ा टुकड़ा। और आजकल हम देखते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान भी है वो क्या करते हैं, गर्भ को ऐसे क्या करते हैं, वो उसको बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। बाकी लोग ने हमको वीडियो वगैरह दिखाते हैं, मतलब इतना भयानक है कि कैसे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल का जो, पहले हम देखते हैं कि माता पुतना रुधिरासिनी थी, उसका नाम क्या था, रुधिरासिनी, मतलब बच्चों के, नवजात शिशु के वो खून पीती थी, लेकिन कभी अपने बच्चा को उन्होंने मारा नहीं, वो भी गर्भ है ना। लेकिन आजकल के माता एक्चुअली इतने
भयानक हो गए, मातृत्व चली गई कि आप गर्भ को क्या एक्चुअली क्या करके वो बिना ये से उनको कोई दुख भी नहीं होता है कि किस प्रकार से होती है। तो बहुत बड़ा जो है पाप है। और 7 विभिन्न जीवों से रोने लगे। इंद्र ने मत रो ऐसा कहकर प्रत्येक को पुनः 7 खंड में काट डाला। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इंद्र ने अपनी योग शक्ति से पहले एक मरुत से शरीर को 7 भागों ने बढ़ा दिया और फिर मूल शरीर को 7 भागों से पत्ते को काटकर कुल 49 भाग कर दिए। जब प्रत्येक शरीर में 7 खंड किए गए तो अन्य जीवात्माएं उन शरीर में प्रविष्ट कर गई। इस प्रकार वे उन वृक्ष के तुल्य बन गए जिन्हें विभिन्न हिस्सों में काटकर पर्वत के ऊपर लगा दिया जाता है और वे प्रत्येक सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब प्रत्येक जीव में क्या था? आत्मा था, है ना। तो इस प्रकार से जो 49 ये बन गए, है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब इंद्र ने इस प्रकार का कार्य किए, लेकिन वहां पे माता दीति ने ये जो व्रत रख रही थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये वैष्णव व्रत था। तो इसलिए उनके जो संतान हुए, ये मरुत हुए, 49 मरुत हुए, वो क्या है? भगवान के भक्त, मतलब देवता बन गए। वो असुर नहीं बने, वो क्या बने? वो देवता बने होती है। तो पर महाराज परीक्षित जो प्रश्न पूछ रहे थे कि ये देवता कैसे बने, तो ये देवता बन गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो द्वेष है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माश्चर्य, ये माश्चर्य जो द्वेष है, ये ऐसा एक अनर्थ है, ये जब तक हमारे हृदय से पूरी तरफ से शून्य नहीं होता तब तक हम भगवान के धाम को जाने के लिए लायक नहीं होंगे। एनवी मतलब क्या? नो वैकेंसी। और यहां हम देखते हैं कि इंद्र जैसे, और इससे पहले हम आगे 8वां स्कंद में वर्णन आता है किस प्रकार से कि प्रहलाद के पिताजी कौन थे? विरोचन। सॉरी, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। और फिर से वो इंद्रदेव एक्चुअली क्या किए थे कि विरोचन के सभा में आए, जो विरोचन राजा बन गए थे तो ब्राह्मण बन के आए। और महाराज जो विरोचन जो है ब्राह्मण को बड़े श्रद्धा प्रेम करते थे, आदर करते थे। तो उनको जो पता था कि एक्चुअली ये जो लोग असुर देवता लोग हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो अपने वेश बदल के आ रहे हैं कुछ मांगने के लिए। तो तभी भी विरोचन ने क्या किया? तैयार हो गए कि ठीक है। और फिर वर्णन आता है कि किस प्रकार से जो है वहां विरोचन का वध हो गया। इंद्र ने एक्चुअली उनको कुछ मिला के दे दिए पेय, जिसके द्वारा विरोचन का वध हो गया, है ना। और यहाँ पे जो है दीति के मन में ये विचार थी कि मैं ये व्रत करना चाहती हूँ और जिससे एक्चुअली क्या मुझे संतान प्राप्त होगा, इससे मैं इंद्र का वध हुई। लेकिन ये भगवान से संबंधित था, भक्ति से संबंधित था, तो इसलिए दीति का मन भी क्या हो गया? बिल्कुल से परिवर्तन हो गया। जब दीति का मन परिवर्तन, तभी तो उन्होंने इंद्र को अनुमति दी, नहीं तो पहले से इंद्र को भगा देते, नहीं मेरे को कोई सेवा नहीं। तभी इन्होंने क्या कि इंद्र को मिलती है। इसलिए ये न करने प्रकार न मन कृष्ण निवेशित निहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यनिविद्यते स्वल्पमस्त्र तो महत भयात। और महाभारत में सुनते, भागवत में सुनते कि इस प्रकार से महाराज द्रुपद भी क्या किए? वो भी यज्ञ किए, तपस्या किए, क्या करने के लिए? उनको एक पुत्र प्राप्त करने के लिए। जो पुत्र क्या होगा? किसका कारण बनेगा मृत्यु का? द्रोणाचार्य का। और जो द्रोणाचार्य को पता भी था। और फिर जो है धृष्टद्युम्न जो है द्रोणाचार्य के पास आते हैं क्या करने के लिए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। द्रोणाचार्य को पता है कि एक्चुअली ये मेरा मृत्यु है, ये मुझे मारने वाला है, लेकिन फिर भी उनको क्या करते? वो ब्राह्मण था है, इसलिए उनको स्वीकार कर रहे हैं कि उनको शिक्षा देने के लिए, समान शिक्षा, ऐसे नहीं कि कोई उच्च नीच भाव में थी। तो ये है भक्ति का प्रभाव, जिससे क्या है कि हम अगर किसी ना किसी रूप से कि भक्ति में लगे हुए तो कभी ना कभी क्या होगा कि हमारा हृदय जो साफ हो जाएगा, कर्म से दूर हो जाएगा। और ये
सबसे बड़ा जो कलमश क्या है, द्वेष होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं कि द्वेष ऐसा एक चीज है कि जैसे कोई व्यक्ति साधु को पास गया और उनको प्रसन्न किए और उससे वर मांगे, तो साधु ने उनको वर दिए कि आपका जो इच्छा पूरा होगा, जो इच्छा करेंगे, लेकिन एक शर्त उसमें है कि आपके जो पड़ोसी व्यक्ति है उसको दुगना फायदा होगा, है ना। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने जो भी इच्छा किया, देखा कि पड़ोसी का क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उन्होंने फिर विचार किया कि ऐसा मैंने क्या इच्छा करूं जिससे क्या होगा, उसका नुकसान होगा। तो उसने सोचा कि एक्चुअली कि मेरा एक आंख जो है नष्ट हो जाए, ताकि दूसरे का क्या होगा, पड़ोसी का 2 आंख नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये भौतिक इच्छा इस प्रकार से है कि हम चाहे कितना भी इच्छा करेंगे, इच्छा हमारा पूरा नहीं होने वाला। इसलिए चैतन्य चरितामृत में, हाँ, कृष्णदास कविराज लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु कि अन्य कामी यदि करे कृष्णर भजन, ना भागिते कृष्ण तारे जन सो चरण। इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जब तक हम शांत नहीं है, शांत कैसे होंगे, अगर हम कृष्ण का भक्ति करेंगे, भक्ति में लगे हुए। नहीं तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि क्या है, वो कामी है, सकल अशांत। कृष्ण कहे आमी भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्खा। कोई भगवान के पास आता है लेकिन क्या मांगता है, मुझे विषय दीजिए, विष दीजिए, इंद्रिय तृप्ति दीजिए। लेकिन भगवान क्या करते हैं, आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय कहने दिया, सो चरणार मृत दिया विषय भुलाया। भगवान को पता है चले कि इसके लिए क्या अमृत है, क्या विष है। तो भगवान कब हमेशा क्या करेंगे, उसको अमृत ही देंगे, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रसंग से हम देखते हैं कि अगर हम भगवान का भक्ति में, जो भी कोई भगवान के भक्ति में लगे रहता है, चाहे कितना भी बड़ा अनर्थ क्यों ना हो, तो समय आने पे एक्चुअली क्या हो जाता है, इस अनर्थ का नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे।